गुड मॉर्निंग आफ्टरनून टू ऑल। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर और मेरे साथी डॉक्टर एसएन राठी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, ज्ञान गंगा 2021 के कार्यक्रम में आज हम प्रैक्टिकल सेशन में पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। Thank you, ma'am. Chromatography is an analytical technique which is used for the separation of a multi-component mixture by distribution between two phases. One of the phases is stationary and the other is the mobile phase. The various methods of chromatography are characterized by the phases involved. Column chromatography, thin layer chromatography and paper chromatography involves solid and liquid phases. Partition chromatography is an example of liquid-liquid chromatography. Vapor phase chromatography involves gas and liquid. The principal mechanism on which these separations depend is the differential solubility of the components of the mixture with respect to the two phases involved. That is, the components must exhibit different partition coefficients. Today we are going to explain paper chromatography. Paper chromatography, like all chromatographic techniques, is a dynamic process wherein the mobile phase transports the sample mixture through a stationary phase medium. As the sample comes in contact with the stationary phase, interactions occur. A partitioning or separation of the components takes place in the mixture, resulting from the differential affinity of each component with the stationary phase. Components with the least affinity for the stationary phase pass through more quickly than the components with greater affinity for a stationary phase. In paper chromatography, water constitutes the stationary phase, which is held in the fibers of the paper, and the other moving liquid is known as the mobile phase. It is also known as the developer, and it forms the moving phase. The components of the mixture to be separated migrate at different rates and appear as spots at different points on the paper. Paper chromatography can be of three types, mainly ascending chromatography, descending paper chromatography and radial paper chromatography. When the development of the paper is done by allowing the solvent to travel up the paper, it is called as ascending chromatography or ascending technique. When the solvent is allowed to travel downwards, it is known as descending paper chromatography. When a circular filter paper is used, radial development is done using a wick. It is called as a radial paper chromatography. Now, here we are using amino acids. Amino acids in a given sample mixture are separated on the basis of the difference in their solubilities. The degree of solubility of the components of the mixture in the solvent as well as the degree of attraction of these components to the wet cellulose molecules in the paper fiber determines the distance that the solvent will carry each substance along the paper. Those components that are quite soluble in the developer or that have a low affinity for cellulose will travel the greatest distance from the origin. The finished paper with the spots is called as a chromatogram. It is the differences in the amino acid towards the paper or the mobile phase that leads to their separation on the paper. The separated amino acids are detected by spraying ninhydrin reagent. Nearly all amino acids give purple color or bluish purple color except proline and hydroproline, which gives yellow colored spots. The reaction proceeds as is shown on the board. Ninhydrin reacts with amino acids, complex is formed. Over to Ma'am Neeta. Stop. प्रैक्टिकल सेशन में जो मेथड बताना है उसमें हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो ऑब्जेक्ट है टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द गिवन अमीनो एसिड फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग ninhydrin एज ए स्प्रे एजेंट और आल्सो कैलकुलेट आरएफ वैल्यू। अब इसमें जो हम एपरेटस यूज करेंगे वो एपरेटस है फर्स्ट क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, सेकंड बोल्ट्जमैन फिल्टर पेपर, थर्ड कैपिलरी ट्यूब। देन रिएजेंट्स जो यूज होने हैं वो है अमीनो एसिड्स,
ग्लाइसिन प्लस एस्पार्टिक एसिड, और सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो लिया है एन ब्यूटेनॉल प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस वाटर इन द रेशियो ऑफ 6:1:3 और निनहाइड्रिन एज ए स्प्रे रिएजेंट यूज किया है। अब अपन प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वॉटमैन फिल्टर पेपर। ये वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है, इसका नंबर 1 और 3 होता है, जो एक एब्जॉर्बेंट की तरह वर्क करेगा। अब इस फिल्टर पेपर टू अपन क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर के थ्रू हम एक फिल्टर स्ट्रिप काट लेंगे, फिल्टर पेपर स्ट्रिप, जो कि हमने लिए है 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। और इसमें इस स्ट्रिप को काटने के बाद इस स्ट्रिप के ऊपर हम स्केल से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम इस पर 3 पॉइंट्स बना लेंगे पेंसिल से, जिसको हम मार्क कर लेंगे। और ये मार्क हम इस तरह करेंगे, सिंगल अमीनो एसिड है तो हमने जैसे ग्लाइसिन लिया है तो G लिख लेते हैं, एस्पार्टिक एसिड लिया है तो A लिख लेते हैं, और मिक्सचर के लिए हम M लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद अब हम अमीनो एसिड जो हैं ये इस तरह से बॉटल्स में अवेलेबल होते हैं, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। इन अमीनो एसिड से अपन वाटर के अंदर 3 वॉच ग्लास लेंगे और इन वॉच ग्लास में इनका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 1-2 ड्रॉप में ही हम इसको सॉल्युबल करेंगे, और सॉल्युबल करने के बाद इस अमीनो एसिड से हम एक ड्रॉप लेके एक पर लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और इसको सूखने देंगे। इसी तरह से दूसरे अमीनो एसिड की एक ड्रॉप लेंगे और उसको भी उस पर लगा देंगे। इसी तरह से जो मिक्सचर लिया है उस मिक्सचर की भी ड्रॉप उस पर लगा देंगे और इसको कुछ टाइम के लिए सूखने देंगे। अब जैसे अपन ने स्ट्रिप को ड्राई होने के लिए रख दिया है, अब ड्राई होने के बाद अब अपन सॉल्वेंट सिस्टम तैयार करेंगे। जो सॉल्वेंट सिस्टम अपन ने जैसे मैंने बताया था कि एन ब्यूटेनॉल, एस्पार्टिक एसिड और वाटर के साथ बनाना है, जिसका रेशियो हमने 6:1:3 लिया है। और ये बनाने के बाद जो हमने सॉल्वेंट सिस्टम तैयार किया है उसको, ये है क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। जिस चैम्बर में आपके पास यदि ये चैम्बर है तो एक थ्रेड अपन इसमें लगा देंगे जिस पर कि अपन क्रोमेटोग्राफिक पेपर लटकाएंगे और ये सॉल्वेंट सिस्टम इसमें फिल कर देंगे। मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू अपन ने इसको तैयार कर लिया है। अब जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप को हमें इस तरह से लटकाना है कि जो हमने ड्रॉप्स बनाए थे, लगाए थे, वो ड्रॉप सॉल्वेंट में डिप नहीं हो, केवल हमारी नीचे की लेयर ही सॉल्वेंट से टच हो। इस तरह से इस तरह को लटकाएंगे, जिससे क्या होता है कि यदि ड्रॉप इसमें डिप हो गया तो वो नीचे की तरफ रन करेगा, जबकि हमें असेंडिंग ऑर्डर लेना है। ड्रॉप जो अवयव है या जो अमीनो एसिड्स के कंपोनेंट्स हैं वो अपवर्ड मूव करें। इस तरह से इसको लटका देंगे। और लटकाने के बाद हम इसको एक ग्लास प्लेट से ढक देंगे। ये ढका इसलिए जाता है कि जिससे कि जो सॉल्वेंट सिस्टम हमने लिया है उसका वाष्पन ना हो सके। अब इसको ढक के हम 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हमने ये स्ट्रिप बाहर निकाल ली। स्ट्रिप बाहर निकालने के बाद हमने इसको देखा कि सॉल्वेंट सिस्टम जो है अपवर्ड गया। अपवर्ड क्यों गया? थ्रू कैपिलरी एक्शन सॉल्वेंट जो है अपवर्ड साइड गया। अब इसको हम निनहाइड्रिन से स्प्रे करेंगे। निनहाइड्रिन जो है वो किस तरह से बनाया है सॉल्वेंट? हमने 1 ग्राम ऑफ निनहाइड्रिन डिजोल्व इन 100 ml एल्कोहल, और जो निनहाइड्रिन सॉल्यूशन बना उसका हमने फिर स्प्रे बॉटल में भरने के बाद इस तरह से उस पर स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद इसको हम ओवन में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर करके इसको हीट होने के लिए रख देंगे। ओवन से जब हम स्ट्रिप को बाहर निकाल लेंगे तो बाहर निकालने के बाद हम ये देखेंगे जो हमने निनहाइड्रिन स्प्रे किया था
उसके हमें लाइक पर्पल कलर के स्पॉट नजर आएंगे, जैसा कि स्ट्रिप में दिखाई दे रहे हैं। और ये इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स के स्ट्रिप और मिक्सचर में हमें 2 स्पॉट्स मिले, और जहां तक सॉल्वेंट ट्रेवल करा वो सॉल्वेंट ट्रेवल करने की लाइन हम खींच लेंगे। इस तरह से हम तीनों डिस्टेंस जो है वो नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल में हम देखेंगे कि अमीनो एसिड लिखी है हमने ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। पहला पॉइंट हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अमीनो एसिड, जो हमने इंडिविजुअल स्पॉट लगाया था उसका डिस्टेंस आ जाएगा L एंड M। फिर उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अमीनो एसिड इन मिक्सचर, वो डिस्टेंस आ जाएगा X एंड Y, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट वो आ जाएगा A। इस तरह से हम RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। RF वैल्यू का जो फॉर्मूला है जो कि कैलकुलेशन पार्ट में जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। ये इस तरह से L अपॉन A, X अपॉन A, इस तरह से हम निकाल लेंगे M अपॉन A एंड Y अपॉन A। इस तरह से हमें इंडिविजुअल अमीनो एसिड मिक्सचर में कौन सा अमीनो एसिड है या क्या है उसके इंडिविजुअलिटी से RF वैल्यू से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ मटेरियल से अपन और सबसे कम एपरेटस के थ्रू इसमें हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं और अमीनो एसिड्स का पता कर सकते हैं।